हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, इमरजेंस ऑफ द रीजनल स्टेट इन इंडिया 12th टू द 18th सेंचुरी। यानी देखा जाए तो 11वां चैप्टर जो है भारत में प्रादेशिक राज्य का उदय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो एनआईएस में पढ़ते हों, चाहे सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, उनके लिए भी ये चैप्टर कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें जो है हम 12वीं सेंचुरी से लेके जो है 18th सेंचुरी के विषय में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The most important topic arrive here, the rise of the regional state or general history. There is a most important topic here, rise of regional state and or general history. There is a chapter of emergence of regional state in India. Is the 12th to 18th century. There is a most important chapter and important point. There is the most important here. In this is a point in the lesson you have a study about the regional state for the 7th and 18th century, and that happened to this state. Did there is a disappear completely from the materials Indian politics? A large number of this regional state is continued to exist after the 13th century, but there were a change in the rulings, recently and the geographically of this state. In this section, you will be get a general overview of the regional state from to 13th to 18th century. There is a most important period time. The Delhi Sultan expanded as a result of the annexations of the state like Bengal, Bihar, Gujarat, Malwa, various Rajput state of Rajasthan like Ranthambore, Jolars and Nagaros, Ajmer and Deccan state of the Varanangal, Telangana and is the Yadavas and the Devgis, and the southern state of the Hoysals and the is the Dwavaras, Mudra and Pandyas of the Madurai, and so on. We have already studied about the various campaigns of the Alauddin Khalji and the shift of the capital from Delhi to the Daulatbad in the Deccan during to the Muhammad bin Tughlaq as a period. Those states that were next to the Sultan formed various is a province and were to the place under the administration of the provisional governor. For the establishment of the Delhi Sultan in the 13th century till the downfall in the 15th century, there was a constant interaction between the province and that were once upon a time the independent state and the center, that is Delhi. However, rebellions from to this area never to the nice. We all know that is a Princess Muhammad bin Tughlaq spent his entire career is crashing the rebellions in the Deccan, Orissa and Bengal. Thus, this is a regional where is now a part of the Delhi Sultan. The regional characteristics of the language, art, literatures, and digital remained. In fact, when the Islam reached here, it is acquired a regional flavor, and this stage already had a stalemate of the Muslim merchant and Muslim employee in the army. And though there is hardly any regional rulings density, there is a provisional governor of the Sultan, allied with the local Raja
and the Jamidar. As accelerated their independence, most of the regional states that come up after the 14th century, when the Delhi Sultan was declined, were a result of the relevance of the governor. The establishment of the Vijayanagar and the Brahmanis were a result of the assertions of power by their provisional officer, like Harihar and the Bukka as the Alauddin Hassan Isbaham Shah respectively. During the same period, Bengal in the east and the Multan and the Sindh, their base become independent. The Firoz Shah Tughlaq tried to resign to the lost territory but could not do so. He tried to the unsuccessfully to take over to Bengal. He attacked and plundered to the Jayanagar, Orissa, but did not be annexed it. He plundered to the Kangra and supposed to the revolt in the Gujarat and Thatta. That is the most important here. And with the death of the Firoz Shah Tughlaq in 1338, the decline of the Sultan began. As we have just mentioned, a large number of local governors become powerful and assisted there is independence in the province. And the relationship between the Sultan and the noble is a word saying there is a conflict with the local ruler and Jamidar as well as regional and geographically tension. Began the Sultan further, the decline to the Sultan received the final blow with their invention of Timur in the 1398 AD. Timur was a Turk who had come from to Central Asia to plunder the wealth of India. Timur entered Delhi and Marsalis as a kill both the Hindu and the Muslim and the marquisate women and children as well. 15 years after the Timur arrived in Delhi, the Delhi Sultan is declined. The sultans is Gujarat, Malwa and Jaunpur near is Varanasi emerged a powerful regional kingdom. Gujarat and Jaunpur were constantly engaged in a tension with the Lodhis of the Delhi Sultan. The 1451 to the 1526 AD, new regional state independent of the Delhi Sultan arose in the center and South India too. Out of which there is prominent ones were to the Gajapati of Orissa, the Brahmanes and the Vijayanagara Empire. The Lodhi Sultan like Bahol Lodhi is a 1451 to 1485 and the Sikandar Lodhi 1489 to 1526 try to keep this regional kingdom under control. Finally, during the ruler of the Ibrahim Lodhi is a 1570 to the 1526, the Bihar declared its independent. And the Daulat Khan, there is a governor of Punjab, and Rebel is invited to the Babur to be involved to the India in the 1526. There is a most important period time. With the establishment of Mughal Empire in 1526 AD, there is a battle of Ibrahim Lodi and Babur, and the expansion in the later period, the ruling dynasty in the regional state gradually lost their power, and this state over a period to the time become the part of the Mughal Empire. But the regional is a feature of language, arts, literature, original continued with the changes. With the decline of the Mughal in the 18th century, and there was rebellions of the provisional governor, and a few annexed states declared their independence. As a result, new regional kingdom arose. The instance and Punjab, Bengal, Ayodhya, Hyderabad, Mysore, and the Marathas. There is the most important kingdom arose in this period time. यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रादेशिक राज्य का उद्भव और सामान्य इतिहास। देखिए ये जो है भारत में प्रादेशिक राज्य का उदय के अंतर्गत है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत में प्रादेशिक राज्य का उद्भव किस तरह से हुआ
और इसकी क्या इतिहास रही और इसकी क्या विशेषता रहा। कहते हैं प्रादेशिक राज्य का अपना एक विशेष स्थान होता है। आपने देखा भी और जाना भी होगा, जब हम मुगल एम्पायर्स कर रहे थे वहाँ पर जो है क्षेत्रीय राजाओं के कारण जो है बहुत बार हारना पड़ा और कई बार जो है विदेशों का भारत को गुलाम बनने में हेल्प भी किया। और कई कई राजाओं ने तो विदेशी आक्रमणकारियों को निमंत्रण भी दिया, जिसमें आप बाबर की स्टोरी तो पढ़ ही चुके हो। तो ये सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि प्रादेशिक राज्य का उद्भव किस प्रकार हुआ और इसका सामान्य इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन राज्यों का क्या हुआ, देखिए कहते हैं 13वीं शताब्दी की अवधि में प्रादेशिक राज्य के संबंध में हमने पढ़ा और इन राज्यों के साथ क्या हुआ। क्या ये राज्य मध्यकालीन भारतीय राजनीति के ये परिदृश्य से पूरी तरह समाप्त हो गए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या ये खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। इनमें से बहुत बड़ी संख्या में प्रादेशिक राज्य 13वीं सदी के बाद भी अस्तित्व में बने रहे, परंतु इन राज्यों पर शासन करने वाले राजवंशों और भूगोल में परिवर्तन आते ही रहे। और इस खंड में आप 13वीं से लेकर 18वीं सदी की अवधि के दौरान प्रादेशिक राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रादेशिक राज्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ। चलिए देखना तो पड़ेगा। कहते हैं अगर दिल्ली सल्तनत कई राज्य जैसे बंगाल, बिहार, गुजरात, मलबा, राजस्थान के अनेक राजपूत राज्य जैसे जो है रणभोर, जलालौर, नागौर, अजमेर, दक्कन प्रदेश के जो है वरंगस व तेलंगाना राज्य, देवगिरी के यादव और दक्षिण राज्य में द्वार समुद्र के हयसल, मदुराई से पांड्यों और इसी प्रकार के अनेक राजाओं के साथ जुड़ने के कारण विस्तार हुआ। तो कहते हैं ये विस्तार का जो है परम सीमा थी। अलाउद्दीन खिलजी के अनेक लड़ाई और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद दक्कन में स्थापित होने के संबंध में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और जाने हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कैसे जो है राजधानी की परिवर्तन किया और कैसे जो है नुकसान में भी पहुंचा दिया। जिन प्रदेशों को सल्तनत के साथ जोड़ा गया था वो विभिन्न प्रांत बने और उन्हें जो है प्रांतीय सूबेदारों के प्रशासन के अधीन भी रखा गया। कहते हैं 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर 15वीं सदी में इसके पतन की अवधि तक प्रांतों जो कि हमें पहले स्वतंत्र राज्य थे, यानी देखा जाए दोस्तों तो ये सारे के सारे पहले स्वतंत्र राज्य थे। इसमें किसी भी राज्यों का पर किसी भी राजा कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन जो है केंद्र दिल्ली के साथ परस्पर अंतक्रियाएं होती रही, यानी दिल्ली सदैव ही किसी न किसी शासक के अधीन चलती गई। परंतु इन क्षेत्रों में सिर उठाने वाले विद्रोहियों को कभी पकड़ा नहीं जा सका। कहते हैं अपनों में जो विद्रोही होते हैं उनको पकड़ना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है। हम सभी जानते हैं कि राजकुमार के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना संपूर्ण जीवन काल दक्कन, उड़ीसा, बंगाल के बागियों को दबाने में लगा दिया। अब समझ सकते हो कि ये बागी कोई दूर के नहीं थे, अपने थे, जिनको जो है दबाने में मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी जीवन काल लगा दिया, यानी 3 क्षेत्र को दबाने में, दक्कन, उड़ीसा और बंगाल में। तो ये बागी थे और ये बार बार जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे थे। यद्यपि अब क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का भाग था, परंतु भाषा, कला, साहित्य और धर्म जैसी प्रादेशिक विशेषता अभी भी इसमें मौजूद थी। यानी देखा जाए तो इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, भाषा, कला, साहित्य और धर्म जैसी प्रादेशिक विशेषताओं को। असल में जब इस्लाम यहाँ पहुँचा तो उसने यहाँ की प्रादेशिक विशेषताओं का ग्रहण भी किया। इस्लाम ने भी बहुत से रीति रिवाज को जो है ग्रहण किया और इन प्रदेश में पहले से ही मुसलमान व्यापारी और सेना में नियुक्तियाँ मुसलमानों की संख्या मौजूद थी। यानी देखा जाए तो भारत में पहले ही मुस्लिम की संख्याएँ मौजूद थी। फिर भी सल्तनत के जो है प्रत्यय सूबेदारों ने स्थानीय राजाओं और जमींदारों के साथ मित्रता की और उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार भी बहुत ही कर लिया। 14वीं सदी के पश्चात जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था तो अधिकांश प्रादेशिक राज्य सूबेदारों की बगावत का परिणाम थे। विजयनगर और बहनमी की स्थापना क्रमशः हरिहर और बुक्का और जो है अलाउद्दीन हसन बैसर शाह जैसे प्रांतीय अधिकारियों द्वारा अपना अधिकार जमाने के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी अवधि के दौरान पूर्व में बंगाल और पश्चिम में जो है मुल्तान और सिंध स्वतंत्र हो गए। फिरोज शाह तुगलक ने अपने खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। उसने बंगाल को जीतने का भी एक सफल प्रयास किया। उसने जो है जजानगर, उड़ीसा पर भी
आक्रमण किया और वहाँ जो है लूटपाट की, मगर उसे भी अपने राज्यों में नहीं मिला सका। उसने जो है कांगड़ा को लूटा और गुजरात और जो है थाटा में विद्रोह को भी काफ़ी हद तक दबा दिया। 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के साथ ही सल्तनत का पतन हो गया। यानी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के कारण ही 1338 में जो है तुगलक वंश का जो है खत्मा हो गया। कहते जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया है कि बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय सूबेदार शक्तिशाली उस समय बन गए थे और प्रदेश में उन्होंने जो है स्वतंत्र अधिकार की घोषणा भी कर दिया था। यानी सभी जो है सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र अधिकारी के रूप में घोषणा कर दिया और सुल्तान और कुलियों के परस्पर संबंध बिगड़ने लग गए। तभी तो इतनी बड़ी जो है युद्ध हुआ। स्थानीय शासकों और जमींदारों में के आपसी झगड़े के साथ साथ प्रादेशिक और भौगोलिक तनाव में सल्तनत की ओर कमजोर बना दिया। पतन की ओर बढ़ती सल्तनत को एक बड़ा ही झटका दिया। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण से लगा। तैमूर एक तुर्की था और मध्य एशिया से भारत में यहाँ की संपदा लूटने के फिराक में आया था और तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और उसने बड़ी बेरहमी से हिंदू, मुसलमानों, औरत और बच्चों को कत्ल कर दिया। कहते हैं बहुत ही बुरा समय काल बताया जा सकता है जहाँ पर इसने लूट मार तो की तैमूरों ने, साथ में हिंदू और मुसलमान औरतें और बच्चों को जो है बहुत ही बुरी तरह से जो है कत्लेआम किया। कहते दिल्ली पर तैमूर के हमले के 15 वर्ष बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। यानी कहते हैं 15 वर्ष पश्चात जब तैमूर ने हमला किया था उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और गुजरात, मलबा और वाराणसी के बाद जौनपुर के सल्तनतों में शक्तिशाली प्रादेशिक साम्राज्य के रूप में उभरी। गुजरात और जौनपुर लगातार दिल्ली सल्तनत के लोधी के साथ जो 1451 से जो है 1526 ईस्वी तक बना रहा। कहते तनाव में काफ़ी उस समय जो है यहाँ पर लोधी उलझा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं था। दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र नए प्रादेशिक राज्य मध्य और दक्षिण भारत में भी उभर कर आए, जिनमें से प्रमुख थे उड़ीसा का जो है गजपति, बहमनी के विजयनगर साम्राज्य। कहते बलौल लोधी जो 1451 से लेकर 1885 और सिकंदर लोधी जो 1489 से लेकर 1526 जैसे लोधी सल्तनतों से प्रदेश राज्यों को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया। कहते ये समय काल बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, चाहे बलौल लोधी का हो चाहे सिकंदर लोधी का हो। कहते इसमें जो है प्रदेशी राज्यों को अपने नियंत्रण में करने का हर संभव कोशिश किया गया और अंत में इब्राहिम लोधी के शासन के दौरान 1517 से लेकर 1526 में बिहार ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। यानी बिहार ने स्वयं को जो है स्वतंत्रता घोषित कर दी। पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने बगावत कर दी और 1526 में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भी किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि बाबर को आमंत्रण किया गया और तब से जो है दिल्ली सल्तनत में जो कहते हैं मुगल काले का स्थापना हो गया। यानी यही समय अवधि थी जब जो है यहाँ पर मुगल का जो है राज्य स्थापित हुआ, जब बाबर को भारत में आमंत्रित किया गया। अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि भारत में जो है बाबर को आमंत्रण क्यों किया गया। तो बात इतनी सी थी कि हर एक राजा जो भारत में रहता था वो सिर्फ राज्य को हड़पने के फिराक में था और कोई राजा अगर बैठता, लोधी जैसे बैठा हुआ था इब्राहिम लोधी, तो उसे ईर्ष्या करता था और इसीलिए जो है उसने बाबर को निमंत्रण भेजा कि आप आइए और भारत पर आक्रमण कीजिए और भारत के क्षेत्रों को जो है जीत के हमें सौंप दीजिए। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर ने जब यहाँ पर आया तो यहाँ की कंडीशन उसको काफ़ी सूट कर गया था, क्योंकि वो बहुत ही उतार चढ़ाव की जो स्थिति से गुजर चुका था। कहते हैं बाबर जो है कुछ समय राजगद्दी पे बैठता था तो कुछ समय जंगलों में व्यतीत करता था, ऐसी परिस्थिति थी। तो इसके बारे में मैं पहले ही बाबर की जो हिस्ट्री, जो मुगल काल के मैंने इतिहास बताया था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्हीं कारणों से जो है बाबर थक सा गया था और उसने भारत पे ही अपना जो है अधिकार जमा लिया। तब जो राजाओं ने इसको निमंत्रण दिया था वो घबरा गए और उन्होंने क्या किया, बाबर से ही दुश्मनी करना स्टार्ट कर दिए। और कहते हैं बाबर को बहुत ही इन्होंने परेशान किया और बहुत बार जो है इनको युद्ध भी करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत काफ़ी ज़रूरी था। कहते हैं 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाद की अवधि में इसके विस्तार के बाद प्रादेशिक राज्य में राज्य करने वाले राजवंश की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी
और कालांतर में ये जो है राज्य मुगल साम्राज्य का हिस्सा भी बन गया, परंतु भाषा, कला, साहित्य और धर्म इत्यादि जैसे विशेषताएं कुछ परिवर्तन के साथ मौजूद सदैव ही रही। 18वीं सदी में मुगलों के पतन के बाद प्रांतीय सूबेदारों ने बगावत भी की और कुछ राज्यों को मुगल साम्राज्य के साथ जोड़े भी गए। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्वयं ही घोषित कर दी और इसके परिणाम स्वरूप नए प्रादेशिक साम्राज्य का उदय हुआ, जैसे पंजाब, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण साम्राज्य थे जो कि कालांतर में काफ़ी समय तक अपना जो है दबदबा बनाए रखे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण तो और भी होगा, जो आगे का टॉपिक आप समझिएगा और जानिएगा। तो इसके लिए आपको त्रिपाण सेंटर के साथ बना रहना पड़ेगा और बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। देखिए, अपना जो है भला आपने स्वयं ही सोचना है, इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं तो यही कहता हूँ कि जो बच्चे पहली बार वीडियो देखते हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और करिएगा तब जब टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आए। कहते हैं बेमतलब का सब्सक्राइब करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इससे जो होता है बच्चे नहीं देखते हैं। कहते हैं वही चीज़ को देखो जो आपको समझ में आए, जहाँ से आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन ये बात भी है कि आप ज़रूर एक बार जो है त्रिपाण सेंटर में विजिट करके देखिए और देखिए कि आपके लिए कितनी यहाँ पर जो है समझ का भंडार पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर त्रिपाण सेंटर का एक ही टैग है, नो ट्रिक ओनली अंडरस्टैंडिंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग सदैव बना रहेगा। आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।